ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று வைசாக்க திரையோதசி, நாளை சதுர்தசி, மறுநாள் பௌர்ணமி. இந்த 3 நாட்கள் அந்திய புஷ்கரணி என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த 3 நாட்கள் செய்யக்கூடிய புண்ணியத்தை அளக்க தேவர்களால் கூட முடியாதாம். அப்படி என்ன விசேஷம் இந்த 3 நாட்களுக்கு? இழந்ததை கூட திரும்ப பெற்றார்கள் தேவர்கள். அவ்வளவு விசேஷமானது. அதை பற்றி நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம். நாம் வைசாக்க ஸ்நானம் மற்றும் தர்மங்கள் பற்றி சில பதிவுகளில் பார்த்துள்ளோம். இதுவரை வைசாக்க ஸ்நானம் மற்ற வைசாக்க தர்மங்கள் செய்யாதோரும் மேலே சொன்ன 3 நாட்கள் அல்லது 3 நாட்களில் ஒரு நாளாவது ஸ்நானம், தானம், வைசாக்க புராண சிரவணம், பாகவதம், பகவத்கீதை பாராயணம், மற்ற புராண சிரவணங்கள் செய்தால் பாப கூட்டம் அடியோடு விலகுமாம். வைசாக்க மாதம் முழுவதும் செய்த புண்ணிய பலன் ஒரு சேர கிடைக்கும். ஏன் அப்படி? இதற்கென்ன விசேஷம் என்றால், ஒரு ஏகாதசி தினத்தில் தான் பார்க்கடல் கடைந்து அமிர்தம் கிடைத்தது. அசுரர்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஓட பகவான் மோகினி அவதாரம் எடுத்தார். இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது ஒரு ஏகாதசி தினத்தில். பின் துவாதசியில் அந்த அமிர்தத்தை பகவான் தேவதைகளுக்கு கொடுப்பதற்காக பாலனம் செய்தார். ஒரு திரையோதசி என்று, அதாவது வைசாக்க திரையோதசி தினத்தில் அமிர்தத்தை தேவதைகளுக்கு கொடுத்தார். சதுர்தசி அன்று தைத்தியர்களை மகாவிஷ்ணு சங்கிராமம், அதான போரிட்டு ஜெயித்தார். பௌர்ணமி அன்று தேவதைகளுக்கு அவர்கள் இழந்த சாம்ராஜ்யம் திரும்ப கிடைத்ததாம். இழந்ததையெல்லாம் அவர்கள் திரும்ப பெற்ற தினம் பௌர்ணமி. அதனால் அமிர்தம் கிடைத்த திரையோதசி, தங்கள் எதிரிகளை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த சதுர்தசி தினம், இழந்த தேவ சாம்ராஜ்யத்தை திரும்ப பெற்ற வைசாக்க பௌர்ணமி. இந்த 3 நாட்கள் மேல் மிகவும் பிரியப்பட்டார்கள் தேவர்கள். இந்த 3 தினங்களுக்கும் 3 திதிகளுக்கும் வரங்கள் கொடுத்தார்களாம். வைசாக்க மாதத்தில் இந்த 3 நாளும் மிக மிக சூப்பர் பலன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு தரக்கூடிய நாட்கள். திருமண யோகம், புத்திர விருத்தி கிடைக்கும். மேலும் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் வேண்டுதல் உள்ளதோ அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்ய வல்லது இந்த தினங்களில் செய்யும் பூஜைகளால், விரதத்தால், தான தர்மங்களால், வைசாக்க ஸ்நானத்தால் கிடைக்குமாம். எல்லா பாபங்களும் அடியோடு அழிகிறது. இந்த மாதம் முழுதும் செய்யாதோரும் இந்த 3 நாட்களில் செய்யும் வைசாக்க ஸ்நான தான தர்மங்களால் மாதம் முழுதும் செய்த சம்பூர்ண பலனும் சேர்த்து கிடைக்கும். அவசியம் புண்ணிய நதிகளில் வைசாக்க ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். அப்படி முடியாதோரும் வீட்டிலேயே சூரியோதயத்துக்கு முன் புண்ணிய நதிகளை மனதில் நினைத்து ஸ்நானம் செய்ய பலன் அபாரம். விஷ்ணு சாயுஜ்யம் நிச்சயம், இதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் இந்த 3 நாட்களை பகவன் நாமம் சொல்லாமல் ஸ்நானம் செய்யாமல் வீணாக கழித்தால் அவர்களுக்கு அதோ கதி கிடைக்கும் என்று எச்சரிக்கையும் விடுகிறது. இந்த 3 நாட்களில் வெந்நீரில் குளித்தால் ரௌரவம் என்ற நரகமும் கிடைக்கும். இதில் சந்தேகமே இல்லைன்னு சொல்லப்படுறது. அதனால் பல காரணங்களால் இதுவரை செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் வைசாக்க தான தர்மங்கள், வைசாக்க ஸ்நானம் எல்லாம். அதனால் இந்த 3 நாட்களை பயன்படுத்தி வைசாக்க தர்மங்களை செய்ய அவர்களுக்கு விஷ்ணு லோகம் நிச்சயம். அப்படி செய்யவில்லை என்றால் ஆயுசு இல்லாமல், சந்தானம் இல்லாமல், ஸ்ரேயஸ் இல்லாமல் இருக்கட்டும்னு தேவதைகள் சொல்கிறார்களாம். இந்த 3 திதியும் பாப கூட்டங்களை சம்ஹாரம் செய்யக்கூடிய தினங்கள். இந்த தினங்களில் பகவத்கீதையை முடிந்த அளவு படிக்கலாம், முழுவதும் படிக்கலாம், அல்லது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பாராயணம் செய்யலாம். இதனால் அஸ்வமேதம் செய்த பலன் கிடைக்கும். மேலும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தினமுமே சொல்வோர் பலர். ஆனால் இந்த 3 நாட்களில் குறிப்பிட்டு இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் செய்வதால் இந்த பூமியிலோ அல்லது தேவலோகத்தில் உள்ளோரால் கூட இதன் பலனை சொல்ல முடியாதாம், அளக்க முடியாதாம். அதை சொல்லும் சக்தி யாருக்குமே இல்லையாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த 3 நாட்கள் அவ்வளவு உத்தமமான நாட்களாக சொல்லப்படுறது. குறிப்பா பௌர்ணமி தினத்தில் 3 நாட்களும் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இந்த பௌர்ணமி தினத்தில் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லி க்ஷீரத்தால், அதாவது பாலால் அபிஷேகம் செய்ய விஷ்ணு லோகம் கிடைக்குமாம். இது சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யுகங்கள் எல்லாம் கரையும், கல்பமும் கரையும். ஆனா இந்த 3 நாட்களில் செய்யும் மதுசூதன பூஜையால் கிடைக்கும் பலன் ஒருபோதும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் வைசாக்க ஸ்நானம் தானம் அவரவர்களால் முடிந்தது கொடுத்தால் அதன் பலன் சொல்லி முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 3 நாட்களில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து முழுதும் பாராயணம் செய்யலாம். இல்ல வேண்டாம், ஒரே ஒரு அத்தியாயம் பாராயணம் செய்யலாம். அதுவும் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் படித்தாலே போதும். விசேஷ பலன் தரும் அபாரமானது. மாதவ பூஜையால், வைசாக்க தர்மத்தால் சிலர் தேவதைகளாக, சிலர் சித்தர்களாக, சிலர் முக்தியும் பெற்றிருக்கிறார்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு பரமபதம் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம். பசுவை கன்றுடன் தானம் செய்தால் அபமிருத்யு நீங்குமாம். எவ்வளவோ தீர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஒரு சமயம் பூலோகம், பாதாள லோகம், ஸ்வர்கலோகம் அல்லது பூ புவ ஸ்வாக என்ற லோகங்கள்ல உள்ள 3.5 கோடி தீர்த்தங்களும் ஒன்று கூடி பேசினவாம். அதான எல்லா ஜீவன்களும் தங்களுடைய பாபத்தை நம்மிடம் கரைக்கிறார்களே, நமது பாபத்தை எங்க போய் கரைக்கிறதுன்னு சொல்லி யோசித்தார்களாம். தீர்த்தங்களுக்கெல்லாம் உத்பவமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் ஹரியை போய் பார்க்க
பார்க்கிறார்கள். வைகுண்டத்துக்கு போய் பகவான் ஜனார்தனை பார்த்து, ஹே பிரபு, தீர்த்தபாதா, மகாவிஷ்ணு எல்லோரும் தங்களுடைய பாபத்தை எங்கள்கிட்ட விசர்ஜனம் பண்ணிட்டு அவர்கள் எல்லாம் உன்னுடைய லோகத்திற்கு வந்து அடைகிறார்கள். எல்லாம் உனது ஆணையினாலேயே நடக்கிறது. ஆனால் எங்களது பாபம் எங்கு செல்லும்? அதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்னு கேட்க பகவான் சொல்றார், இந்த வைசாக சுக்ல பட்சத்தில் வரும் திரையோதசி, சதுர்தசி, பௌர்ணமி இந்த 3 நாட்களில் சூரியோதயத்துக்கு முன்னால் எங்கெல்லாம் ஜலம் இருக்கோ அங்க போய் நீங்க நிறைந்து கொள்ளுங்கள். அங்க போய் நீங்கள் இருக்கலாம். அதனால் உங்களுடைய பாபம் விடுபடும். ஆனா இந்த வைசாக்க ஸ்நானம் இந்த 3 நாள்ல யாரெல்லாம் செய்யாம இருக்கா இல்லையா, இந்த பாபமானது அவர்களை போய் சேரும்னு சொல்றாராம் பகவான். இப்படி மகாவிஷ்ணு அவர்களுக்கு வரம் கொடுக்கிறார். தீர்த்தங்களுக்கு சுத்தி காலமாக சொல்லப்படுது இந்த 3 நாட்கள். இந்த தீர்த்தங்கள்லாம் தங்களுடைய பாபங்களை கரைத்து கொள்ளும் நாட்கள். நாம ஸ்நானம் செய்தா நமக்கு அமோக பலன் உண்டு. நம்மளுடைய பாபங்கள்லாம் கூட்டமாக அழிகிறது. ஆனா பண்ணாம இருக்க கூடாதுன்றது எச்சரிக்கையும் சொல்லப்படுறது. வெளியே போய் செய்ய வேண்டும் என்பது அவசியம். முடியாவிட்டாலும் வீட்டிலேயே தீர்த்தங்களை மனதால் நினைத்து சூரியோதயத்துக்கு முன் செய்வது அவசியம். இது தினத்திரய வைபவம். இப்படி அற்புதமான நாட்கள், நினைத்ததையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது, இழந்ததையெல்லாம் மீட்டு கொடுக்கக்கூடிய அற்புத நாட்கள்ல வைசாக்க மகாத்மியம் கேட்போம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், பகவத்கீதை, பாகவத பாராயணம் செய்தும் புராண ஸ்ரவணம் செய்து தான தர்மங்கள் செய்து பலன் பெறுவோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாராயணம் செய்வது விசேஷம் என்பதால் நாம் நரசிம்ம ஜெயந்தியை ஒட்டி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் உள்ள இந்த ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்தோத்திரம் சொல்ல மங்களங்கள் உண்டாகும். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீ கணேஷாய நமக. பிரம்மோவாச்ச நதோஸ்ம்யனந்தாய துரந்த சக்தயே விசித்திரவீர்யாய பவித்ரகர்மணே விஸ்வஸ்ய சர்கஸ்திதி சம்யமான் குணைः ஸ்வலீலயா சந்தததே வ்யயாத்மனே. ஸ்ரீருத்ர உவாச்ச கோபகாலோ யுகாந்தஸ்தே ஹதோ யமசுரோல்பகः தத்சுதம் பாஹ்யுபஸ்ருதம் பக்தந்தே பக்தவத்சல. இந்திர உவாச்ச பிரத்யானீதாः பரமபவதா த்ராயதாம் ந ஸ்வபாகா दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैः किं ऋषय ऊचुः त्वं नस्तपः परममातयदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्ताः पितर ऊचुः श्राद्धानि नोदि बुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपि बत्तिलाम्बो तस्योदरान्नकविदीर्नवपाद्य आर्चत्तस्मै नमो नृहरये किल धर्मगोप्त्रे सिद्धा ऊचुः यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहारशीद्योगतपोबलेन नानादर्पं तं नकैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नरसिंह विद्याधरा ऊचुः विद्यां पृथग्धारणयानुराद्धां न्यषेददज्ञो बलवीर्यदृप्तः स येन सङ्ख्ये पशुवद्दतस्तं माया नरसिंहं प्रणतास्म नित्यम् नागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनासां दत्तानन्दनमोऽस्तु ते मनव ऊचुः मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः भवता कलस्य उपसंहृतः प्रभो करवामते किमनुषादिकिङ्करान् प्रजापतय ऊचुः प्रजेशा वयन्ते परेशाभिसृष्टा नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः स एष त्वया भिन्नवक्षानुषेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः गन्धर्वा ऊचुः वयं विभोते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पतस्तः कुशलाय कल्पते चारणा ऊचुः हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः यदेव साधुहृच्चय स्वया सुरः समापितः यक्षा ऊचुः वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्तैकदिति सुतेन प्रापिता वाहकत्वम्
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंशः किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं हु महापुरुष ईश्वर अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे यस्तां व्यनैषीद्वृषमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन् यतामयः किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्त्वानुगादिति जेन विष्टिममुनानुकारिताः भवता हरे स वृजिनो वसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव विष्णुपार्षदा ऊचुः अद्यैतद्धरिनररूपमद्भुतं ते दृष्टं न शरणद सर्वलोकशर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः इति श्रीमद्भागवतान्तर्गते सप्तमस्कन्धे अष्टमाध्याये श्रीनरसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः. ஹரிஹி ஓம். பகவத்கீதை 18 அத்தியாயம், மொத்தம் 706 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. அதிலிருந்து முக்கியமான 107 ஸ்லோகங்கள் எடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை சொல்ல முழு பகவத்கீதை பாராயணம் செய்த பலன் தரும் என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத தியானம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதே அத்வைதாமிருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்ப த்வாம் அனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷிணீம். நமோஸ்து தே வியாச விஷால புத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ரநேத்ர ஏன த்வயா பாரத தைல பூர்ணः பிரஜ்வாலிதோ ஞானமயः பிரதீபः பிரபன்ன பாரிஜாதாய தோத்ரவேத்ரைகபாணயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத ஸ்ரீமத்பகவத்கீதா திருதராஷ்டிர உவாச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகாः பாண்டவாश्चैव கிமகுர்வத சஞ்சய कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांसि तिक्षस्व भारत. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्येकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयाणीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ती ज्ञानी च भरतर्षभ बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतूनानि न कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् नष्टोऽस्यसि विनङ्क्ष्यसि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीभगवद्गीता श्लोका सम्पूर्णा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।